Namaskar. Namaskar. Myself is Arun Gupta, astrologer, numerologist, Mahavastu expert, and law of attraction practitioner. Today, I am coming on the request of many of my students who learns astrology and numerology and Vastu from me and many other clients as well, because people are very much concerned कि चार transit एक साथ हो रहा है, and all about the transits are of very big planets like Jupiter, Saturn, Rahu and Ketu. राहु केतु साथ में ट्रांजिट करते हैं, ऑफ कोर्स जो लोग एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई करते हैं उनको पता है. बट डेफिनेटली चार प्लैनेट मूव हो जाना इज अ बिग थिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आल्सो नीड टू बी माइंडफुल कि दिस ट्रांजिट अभी जहां से भी था अच्छे पोजीशन में था तो और अच्छा हुआ कि और थोड़ा नीचे पोजीशन में आ गया. जो भी पोजीशन हुआ अच्छा हुआ या नीचे हुआ, दिस पोजीशन इज नॉट गोइंग टू गो ओवर. एक आध महीने में ठीक नहीं होने वाला है या बुरा भी नहीं होने वाला है. जिनके लिए अच्छा हुआ तो अच्छा रहेगा predominantly, because all these transit will be valid for at least 1 year to 1.5 year. किसी किसी एक क्षेत्र में 2.5 साल तक ये एक्टिव रहेंगे, because Saturn next transit will be after 2.5 years. So it is a very significant time of our life. एक साल कोई कम टाइम नहीं है या 1.5 साल 2.5 साल कोई कम टाइम नहीं है. So ये वीडियो बड़ा हो जाएंगे इसलिए हम पार्ट में कर रहे हैं. दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने 4 लगन के बारे में बताया. 1 इज एरिस यानी वृष, सेकंड इज टॉरस, first one is Aries, which is Mesh Lagan. Then second one is Taurus, which is Bishop. Third one is Gemini, which is Mithun. And fourth one we have completed is Cancer, जो कर्क लगन है. ये 4 लगन के व्यक्ति का हमने कंप्लीट किया है. इस पार्ट में हम भी कंप्लीट करेंगे. We'll also talk about few basic remedies, and that is the purpose of Mangalmay, wherein we talk only about basic remedies, doable remedies, not costly remedies, not आपको कि भय दिखा दिया ये करना पड़ेगा, you have to spend thousands or lakhs of rupees, nothing like that. So this is our specialty, this is our interest. Without any loss of time, I will start quickly with the 5th lagan, that is Shing lagan यानी कि लियो. So लियो लगन की जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये टाइम अगर कैसे जाए, again whenever I am predicting I have to be very clear about this कि सबका चार्ट अलग है. ऐसा नहीं कि जितना लियो दुनिया का पॉपुलेशन का 1/12 लोग तो लियो में ही होंगे या वर्गों में होंगे इक्वली, काइंड ऑफ रफली प्रोबेबिलिटी मैथ करके. बट ऐसा नहीं है कि सबका लाइफ सेम जैसा चलेगा, बिकॉज आपका कुंडली में जब आपने बैठे जन्म लिए थे तब आपका बाकी प्लैनेट्स कहाँ बैठा था, व्हाट वाज द एंगुलर calculation between your location at that point in time with the galaxy is how your life is getting changed. But yes, this prediction will match to a large extent because ये आपके साथ अभी movement में planets ये angle बना रहा है. So people who are of Shing Lagan यानी Leo ascendant, the only thing is they might feel like a little bit of repulsive of religion. They may be not feeling like following any particular religion. Okay, जो भी religions वो belong करते हैं. At the same time, इनको they will be kind of mindset to go to foreign lands. इनको घर से particularly अगर if you see that ये joint family है तो 2 भाइयों में भी विच्छेद होने का chances यहाँ पे बन जाता है. इस समय सबके साथ आपके जो best I would say is about the position of Saturn in your gochar or transit. This time Saturn is in Aquarius, wherein we consider that Saturn is in a very happy state. अपना घर में आराम से है तो definitely ये आपको भी खुशी रिजल्ट देंगे. Okay, so ये आपको करना क्या है अगर रेमेडी पूछेंगे, नहीं कोई पैसा नहीं खर्च करना है. People who are married, they just need to be good with their spouse. अगर लेडी है तो हस्बैंड जेंट्स है तो उनके वाइफ के साथ. यू हैव टू बी ड्यूटीफुल, यू हैव टू बी लॉयल. दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज यू नीड टू फॉलो. हेल्थ के बारे में बोले तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक लिटिल मोर केयर ऑफ योर ओन हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ योर मदर.
जो एजुकेशन सेक्टर में अभी है, पढ़ाई के कोई बच्चे हैं जिनको पढ़ाई का अभी टाइम चल रहा है, स्पेशली अभी मैं ऐसा बोलूं कि जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल का पढ़ाई कर रहा है, इनके लिए भी अच्छा है। बट यस, आई कैन सी दैट दे हैव टू काइंड ऑफ डू लिटिल मोर एफर्ट इन द एजुकेशन सेक्टर। तो अगर 110 एफर्ट करेंगे तो आपको 100 का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मेहनत कराएगा बट अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। इट इज ऑल्सो टाइम काइंड ऑफ, आई वुड से, टू थिंक डीपर। हाँ, स्टूडेंट्स के बारे में ये बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट बड़े लाइक हायर एजुकेशन करना चाहता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है बाहर कंट्री से, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर देम। दिस इज अ टाइम टू थिंक डीपर, टाइम टू थिंक लिटिल अलग, थोड़ा सा डिफरेंटली कुछ सोचना। एंड ये जो चेंजेस आपका लाइफ में होगा, ये मेरे हिसाब से अच्छे के लिए होगा, क्योंकि जुपिटर भी आपका ऐसे जगह में है जो आप में शायद चेंज लाएगा। बट ऑब्वियसली जुपिटर गुरु है, तो हमारे लिए जो भी चेंज लाएगा अच्छे के लिए ही लाएगा। सो दिस इज अ टाइम आपको ये भी प्रॉमिस करता है, अगर आपका लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है, जहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क आपका मन में आ रहा है, ये सिचुएशन ऐसा बनता आ रहा है, तो मेरा मानना ये है कि दिस इज अ टाइम विच इज वेरी फेवरेबल फॉर यू टू गेट सम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। कोई पूर्व पुरुष का रखा हुआ प्रॉपर्टी या जो भी है, ऐसा आपको मिलने का चांसेस है, जब आपने खुद नहीं कमाया ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे अपना पेरेंट्स से आए, अपने इन लॉज से आए, अपना ग्रैंड पेरेंट्स से आए, whichever way you want to think, you can think. रेमेडी एक तो मैंने बता ही दिया। सेकेंडली, आई विल ऑलवेज से कि स्टे स्पिरिचुअल, रिलीजियस का बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्टे स्पिरिचुअल, थिंक डीपर। एंड ये जो समय आपके लिए है, ये आपके लिए, यू कैन प्रिंट मनी, पैसा छाप सकते हो, यू कैन मिंट मनी, प्रिंट मनी, whatever way. Okay, moving to the next ascendant, वार्गियो यानी कन्या ascendant, कन्या लगन वाले व्यक्तियों के साथ कैसा हो सकता है। इनके साथ मेरा एक खाली जो चांसेस है, आई वुड से दैट अगर आपके साथ कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहा है, सो या नहीं भी चल रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आई वुड से ट्राई टू अवॉइड कोर्ट केसेस, क्योंकि आपको शायद ये टेंडेंसी होगा कोर्ट केसेस का। आपके लिए भी सडन आपको कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने का चांसेस है। फॉरेन ट्रैवल आपके लिए भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। बट उसके साथ व्हाट कीप्स मी लिटिल वरीड अबाउट वार्गो एसेंडेंट इज अबाउट द हेल्थ। ये एक जगह है जहाँ पे वी हैव टू बी लिटिल वेरी मच केयरफुल। और ये हेल्थ जो है, ये शायद ऐसा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है जहाँ पे आपको जल्दी क्योर नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो है, सो यू हैव टू बी, वी कैन ओनली बी लिटिल एंड लिटिल केयरफुल। प्रोफेशनली मेरा ये मानना है, इट इज अ वेरी गुड टाइम। ऐसा जगह पे आपका है कि सिचुएशन, कि आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो, स्पेशली आप अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हो, अगर आप कुछ लेदर इंडस्ट्री में हो, और भी ऐसा कोई सर्विस हो जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो डेफिनेटली आपके लिए, अगर एज ए प्रोफेशन भी हो, जैसे कंसल्टेंट, हम लोग जैसे कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, तो ऐसा कंसल्टेंट भी हो, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम। जॉब अपॉर्चुनिटी जिनको नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का हाई चांसेस मुझे दिख रहा है। स्पेशली किसी के घर में कोई छोटा भाई है जो जॉब ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली इट इज अ गुड टाइम, आपका कुंडली से उनको सपोर्ट मिलेगा कि आपका छोटा भाई को शायद जॉब लग जाए। हेल्थ के बारे में जब बता रहा था, तो ये भी एक पॉइंट मुझे दिमाग में आ रहा है कि यू नो हेडेक या हेड में कोई इंजरी होने का चांसेस है, सो लिटिल मोर केयरफुल। ये टाइम जो है, इट इज डेफिनेटली, इट इज वेरी गुड फॉर मैरिजेस। आपका जो लोग प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, डेफिनेटली इट इज वेरी गुड टाइम फॉर मैरिजेस। अगर कोई शादीशुदा है जो चिल्ड्रन प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली इज आल्सो वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। ये टाइम में आई वुड से दैट अगर आप कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपको टेंडेंसी होगा कोर्ट केस में जाने का, वो मैं मना ही कर रहा हूँ कि मत जाओ। लेकिन अगर कोई चल रहा है जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, मुझे यकीन है परमात्मा के कृपा से आपको अभी जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है। डेफिनेटली अगर आप बिजनेस में हो, तो आप जो भी सेवा दे रहा है, जो भी सर्विसेज दे रहा है, दिस इज द टाइम वेयर इन यू हैव टू बी वेरी लॉयल, किसी को ठग ना नहीं है, आपको वेरी लॉयली
एथिकली आपको काम करके चलना है। These are the kind of remedies which will give you result throughout your life. अगर आप कोई लोन लेके कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो या कोई बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हो, मेरा सलाह आपके लिए होगा कि उस रास्ते पे ना चलिए। मूविंग टू द नेक्स्ट असेंडेंट यानी लिब्रा असेंडेंट, जिसको हम तुला लगन वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए बात करेंगे। तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए मुझे एक चीज है कि डेफिनेटली अगर वो बिजनेस में है, ये बहुत बिजनेस एक्सपेंशन का टाइम है। उसके साथ एक चीज में आपको सावधान रहना है कि आपको अचानक कोई बदनामी आ सकता है। आपका मार्केट में अच्छा चल रहा है, यू हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपका रेपुटेशन पे कोई दाग आ जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर पिछले कुछ कर्म भी कर रखा होगा जिसके कारण ये हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट यू मे गेट एक्सपोज्ड। ओके, सडन अप्स एंड डाउन्स, आपका सोशल सर्कल जो है वहां पे भी सडन अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकता है। आई वुड से दैट आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है इस समय, ये जो आपके साथ होगा, अगर बाई चांस ऊपर नीचे कुछ हो गया, इससे आपको बेनिफिट भी, अगर मैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचूं तो डेफिनेटली योर थिंकिंग प्रोसेस जो है, योर थॉट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, सोचने का तरीका, यू विल डेफिनेटली गेन मोर मैच्योरिटी। आपका उसमें सोचने का तरीका में एक बदलाव आएगा और ये बदलाव आपके अच्छे के लिए आएगा। सो मे बी द पर्सन हु वाज नॉट सो सीरियस इन हिज लाइफ might get serious from now onwards or at least for the current period. Again, जो लोग सर्विस में हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग सडन इनकम्स, कहीं से कुछ बोनस या कुछ ऐसा कुछ पैसा अटका हुआ है, वो मिलने का अगर चांस ऐसा है तो डेफिनेटली आपके लिए ये टाइम शुभ रहने वाला है। रेमेडी, आई वुड से दैट कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन से दूर रहिए। डोंट गेट इनटू, इफ यू आर एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, सोच समझ के बहुत आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई न्यू रिलेशनशिप बना रहा है तो डेफिनेटली यू आल्सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका ये भी एक टेंडेंसी है दैट यू माइट गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद पीपल हु आर नॉट सो ग्रेट। अगर आपका कुंडली में शनिदेव नीच में है तो डेफिनेटली ये टाइम में आप लव अफेयर्स में तो जा सकते हैं, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन कनेक्शन विद रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल इज मोर डिपेंड्स, अगर आपका कुंडली में आपका शनि मेलिफिक है तो। अगेन, अवॉइड टेकिंग एनी लोन्स एंड डेट्स, क्योंकि आप चुका पाएंगे लेकिन आपके लिए ये इतना बड़ा होता जाएगा, मतलब आपका बहेज इतना बड़ा हो जाएगा, आपका लोन, सबकी इंटरेस्ट विल बी सो हाई ऑन यू that will be very difficult for you, मतलब बाद में आप if may feel choking. And one thing is, कुछ भी मुसीबत आए इस टाइम में, never sell your gold। बहुत लेडी स्पेशली अपना गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेच के फैमिली को हेल्प करना चाहती है, तो मेरा सलाह वो रहेगा, प्लीज अभी अगले 1 साल तक ऐसा कुछ दिमाग में मत लाइए। मूविंग टू द नेक्स्ट असेंडेंट, दैट इज स्कॉर्पियो असेंडेंट, जिसको हम वृश्चिक लगन वाले बोलते हैं। उनके लिए ये टाइम ऐसा है कि वैसे भी स्कॉर्पियंस का हराना मुश्किल है, बट अभी जो टाइम है अगले 1-1.5 साल, आपको कर्म क्षेत्र में या कोई भी सिचुएशन में आपको दबा के रखना इज वेरी डिफिकल्ट। आपका कॉम्पिटिटर्स पे आप इतने भारी पड़ोगे कि डेफिनेटली यू विल विन ओवर एनी सिचुएशन। अगर आपको ऑफ कोर्स कोर्ट केसेस भी चल रहा है तो वहां पे भी लीगल बैटल में भी चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे आप सक्सेस के साथ जीत के निकलोगे। आपको सावधान क्या होना है? आपको सावधान मेरे हिसाब से ये होना है कि आपको शायद कभी कभी डिप्रेशन आ सकता है। दिस इज वन टाइम वेयरइन यू हैव टू बी, दिस इज वन थिंग वेयरइन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, घर पे भी आपको सिचुएशन उतना शायद होम जो पहले जैसा वाइब्रेंट था शायद नहीं लग रहा होगा। शायद ऐसा होगा कि यू आर हैविंग वेरी फ्रीक्वेंट फाइट्स। क्यों हो रहा है पता नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट रीजन नहीं है, लेकिन घर पे झगड़ा हो रहा है। अगेन, स्टूडेंट्स जो लोग हैं उनके लिए, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हु आर एट सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का टाइम है। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। वेरी गुड टाइम ओवरऑल,
स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे आर्ट, म्यूजिक, कम्युनिकेशन, ड्राइंग, कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट आप फील्ड ले लो या परफॉर्मेंशियल आर्ट कर लो, इनके लिए तो इट इज वेरी 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 गुड टाइम। ओके, पीपल हु आर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डिजाइनिंग में है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, नॉट लाइक टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट, जो लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में नया कुछ प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं आईटी इंडस्ट्री में, उनके लिए दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ रिसेंट टाइम्स, आई वुड से, इफ नॉट द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। ओके, जो लोग शादी या फैमिली प्लानिंग करना चाहता है, दिस इज आल्सो वेरी गुड टाइम फॉर मैरिजेस एंड फॉर हैविंग चिल्ड्रन। रेमेडी, मेरा सिंपल रेमेडी सजेशन सबके लिए यह रहेगा कि डू एवरी पॉसिबल थिंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली, होम, एक रूटीन लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ लीड करिए, अदरवाइज यू माइट लैंड अप इनटू काइंड ऑफ वरिंग योर ओन हेल्थ, राइट। घर में बहुत टॉलरेंट रहिए, घर में जो भी आपका सेवादार होता है, जैसे आपका कोई सर्वेंट्स, मेड्स या जो भी आप ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी आपको जिनका भी सेवा आप लेते हो, उनके साथ आप व्यवहार ठीक, बिहेवियर ठीक रखिए। एंड if possible, I would suggest everyone to spend some time of your day for spiritual reasons. This is where I will end my part 2 series. I think this will be little helpful for you for every ascendant I have covered. I will come back in the part 3 with the rest of the ascendants. तब तक के लिए thanks for watching मंगलमय। सवार जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। Wishing you all a very happy and successful life. Thank you.